بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر تمام صحافی ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ حکومت پنجاب کی اب تک کی کارکردگی کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے مختلف وزراء اور ڈپارٹمنٹس کو میڈیا کے ذریعے ان خدمات کو پہنچانے کے لیے آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے۔ اور آج کا ہمارے منسٹر ٹرانسپورٹ کھچی صاحب جو ہیں اپنے محکمے کے حوالے سے اب تک کی جو اچیومنٹس ہیں حکومت پنجاب کی، اس پہ آپ کو تفصیل سے اعتماد میں لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ہفتہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مصطفیٰ کے سلسلے میں منڈے سے، جو کمنگ منڈے ہے، ٹو نیکسٹ منڈے، یعنی ایک ہفتہ بھرپور انداز سے منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور منڈے کو کیبنٹ میٹنگ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پوری کیبنٹ کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب تمام محکموں کو ہدایات جاری کرنے جا رہے ہیں کہ اس ہفتے کے اندر تحصیل کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ، ڈویژن کی سطح پہ اور پھر پنجاب بھر میں اس ہفتے کو شان مصطفیٰ کے ساتھ جوڑتے ہوئے بھرپور انداز سے منایا جائے گا، جس میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ ہر شعبہ اور مکتبہ فکر کے افراد اور اس سے تعلق رکھنے والے محکمے، اور خصوصاً چونکہ رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے تو جو پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے، تو ان کے لیے صرف رحمت للمسلمین کا ہفتہ نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کا ہے۔ تو ہر وہ مذہب، نسل اور فقہ جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے اور خصوصاً پنجاب کے اندر رہائش پذیر ہے، ان سب کو اس ہفتے کے اندر ان پروگراموں کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ میڈیا کی مدد سے ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمارے لیے نہ صرف رول ماڈل ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے، اور امن، بھائی چارہ اور انسانیت کے ساتھ جڑے تمام جو پیرامیٹرز ہیں اور اصول ہیں، ان کے اسوہ حسنہ سے جن سے رہنمائی ملتی ہے، وہ ہم دنیا کے سامنے لائیں گے اور میڈیا کی آنکھ اس کو دکھائے گی۔ بعد میں یہ ان کی پریزنٹیشن کے بعد کیلبری کوئین پہ بھی بات ہوگی، اور کیلبری کوئین کی جو آج کی تازہ ترین فساد سے بھری گفتگو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو کھچی صاحب، آپ کو خوش آمدید، اور آپ اپنے ان صحافی بھائیوں کو اپنی 1 سال، 2 سال اور آج کے دن کی جو اچیومنٹس ہیں ٹل ٹوڈے وہ کائنڈلی اپڈیٹ دیں ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام صحافی بھائیوں کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حکومت پنجاب ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے
گزشتہ 2 سال میں جو ہمارے ذمہ سب سے بڑا ٹاسک تھا اور جس کے اوپر ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ جان بوجھ کر ہم اورینج لائن ٹرین کو ڈیلے کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے کہ اورینج لائن ٹرین موجودہ حکومت نے اپنے جو ہمارے ترقیاتی پروگرام تھے، جو ہمارے عوام کے ساتھ الیکشن میں وعدے تھے، ان کو ہم نے پسے پش ڈال کر اس منصوبے کو نہ صرف مکمل کیا ہے بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی دلچسپی سے یہ دیکھیں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اس منصوبے کا جو ایک اہم کمپوننٹ تھا وہ تھا کہ اس کا فیئر کیا ہو۔ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر اس منصوبے کے ساتھ کوئی ٹھوس کا مظاہرہ کرتی تو ہم اس کا اوریجنل جو ریٹ تھا اس کا آپریشنل 160 روپے وہ رکھ سکتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک ذمہ دار حکومت کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ جو عوام کی ایک ہیوج انویسٹمنٹ جس کے اوپر گو کہ ہمارے تحفظات ہیں، اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان سردار عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ نے نہ صرف اس منصوبے کو مکمل کیا، یہ منصوبہ اب آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور اس کے اوپر ہیوج سبسڈی، یہ میں ایک ریکارڈ کی درستی چاہتا ہوں کہ جو 2012 میں اس کی اسٹڈی کرائی گئی تھی تو اس وقت ہمارے ڈالر کا ریٹ 65 تھا اور 30 روپے کی اسٹڈی تھی کہ 30 روپے ٹکٹ اگر رکھی جائے گی تو 2.5 لاکھ مسافر اس کے اوپر سفر کریں گے۔ 2015 میں جب اس کا ایگریمنٹ کیا چائنا کی گورنمنٹ کے ساتھ تو اس وقت 105 روپے کا ڈالر تھا، اور آج 2020 میں ڈالر آپ کے سامنے ہے کہ 160 روپے پہ تھا، تو اگر ہم اس کی وہی اوریجنل پرائس نکالتے تو وہ تقریباً 80 روپے بنتی تھی، لیکن پنجاب کابینہ نے، پنجاب حکومت نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے اس منصوبے کو نیک نیتی سے چلانے کے لیے اس کا انتہائی ریڈیوس ریٹ 40 روپیز ہم نے لاہور کی عوام کے لیے رکھا ہے۔ پچھلے 2 سال میں ہماری جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، میں اس میں یہ بھی ایک آپ کو آپ کی دلچسپی کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جو اس وقت ہمارے میٹرو بسز کا جو سسٹم تھا اس کا کانٹریکٹ تقریباً ایکسپائر ہو چکا ہے، تو ہماری حکومت نے جو 304 روپے کا ریٹ کے اوپر جو ہم نے نئے ایگریمنٹ کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہم نے ہیوج اماؤنٹ جو ہے حکومت پنجاب کی عوام کے پیسے کی بچائی ہے۔ اس سے پہلے یہی ریٹ تقریباً 364 روپے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سابقہ جو 2 سال گزرے ہیں، ہمارا جو روٹ سسٹم تھے یہ سارے مینول تھے، اب ہم نے ان کو سب کو الیکٹرانک کر دیا ہے، اور جو اس کے حوالے سے جتنی بھی پورے پنجاب میں کرپشن ہوتی تھی اس کا دروازہ ہم نے بند کر دیا، اور اب یہ سارا سسٹم آن لائن سسٹم ہے۔ اس آن لائن سسٹم کے تحت ہمارے جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں وہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج سے 3-4 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے ہمیں ایک خصوصی ٹاسک دیا تھا۔ لاہور کیونکہ اسموگ کے حوالے سے اس کے بڑے برے حالات ہیں اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کی وجہ کر کے اس میں کافی اس کا عمل دخل ہے، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے ڈپارٹمنٹ کو الیکٹرک بسوں کے حوالے سے خصوصی ہدایت دی ہیں، اور میں آپ کے میڈیا کے توسط سے اپنے لاہور کے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی جو دلچسپی ہے الیکٹرک بسوں کے حوالے سے، ہم بہت جلد اس آپ کو لاہور میں اور لاہور کے ساتھ ساتھ ہم تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اپنا یہ سسٹم انٹروڈیوس کروانے لگے ہیں۔ پچھلے 2 سال جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ ہم نے ان منصوبوں کو مکمل کر کیا ہے جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری تھی، ایک ذمہ دار حکومت کو طرز حکمرانی ہم نے اپنایا ہے، اور وہ منصوبے ہم نے مکمل کیے ہیں۔ اب ہمارا سب سے جو امپورٹنٹ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے پنجاب کے بھائیوں کو الیکٹرک بسیں انشاءاللہ فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کل جو پچھلے 2 دن پہلے ہماری سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت جتنے بھی ہمارے یہ ماس ٹرانزٹ کے سسٹم ہیں اس میں سیکورٹی کے اوپر تقریباً 70 کروڑ روپیہ سالانہ حکومت آؤٹ سورس ایجنسیوں کو پے کر رہی ہے۔
اس لیے ہم نے ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک اپنی پولیس ہوگی. جیسا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ اورنج لائن ٹرین میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، جو وہاں پر کچھ ایک دو جھگڑے ہوئے ہیں، اس حوالے سے جو ہماری سیکورٹی کمپنیز ہیں وہ کردار نہیں ادا کر سکتی جو ایک آفیشیل فورس کو کرنا چاہیے. اسی لیے اسی کنسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے حکومت کو ایک پرپوزل پیش کیا ہے، جس کے اوپر میں انتہائی مشکور ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اس کی پرنسپل اپروول دے دی ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ پولیس کے حوالے سے ایک سسٹم پورے پنجاب میں انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں، جس کے اوپر تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جتنا ہم اس وقت ریونیو حکومت کو دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہماری اپنی فورس ہونے سے، جس طرح کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس کی اپنی فورسز ہیں، تو ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی امپلیمنٹیشن بہتری کے لیے اپنی ایک پولیس فورس کو ہم انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو ہمارے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، اور ہم حکومت کے ریونیو میں بھی انشاءاللہ جو اس وقت ہم دے رہے ہیں، ہم یہ توقع کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں ریونیو میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی جو اس وقت صرف لاہور میں آپریٹ کر رہی تھی، اس کے حوالے سے بھی کافی دوستوں کے بھی آبزرویشنز ہیں، آپ کے میڈیا کے بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں. تو ہم نے پورے پنجاب کے لیے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کمپنی کو لاہور کے بجائے پورے پنجاب میں اس کو آپریٹ کرنا چاہیے. تو تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو ہمارے پنجاب کے ہیں، وہاں پر ہم انشاءاللہ بہت جلد الیکٹرک بسیں بھی چلائیں گے اور ایک اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی فراہم کریں گے. اس کے ساتھ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کوئی اگر سوال ہو تو اس کا انشاءاللہ. نہیں، میں اس کو اس طرح آپ کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس وقت کیونکہ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے آپریٹ کرنا. ہمارے پاس اس وقت ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم دوسرے اضلاع میں یا دوسرے ہیڈ کوارٹرز میں جہاں پر ہم یہ سسٹم انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں وہاں پر کوئی ہمارے پاس میکینزم نہیں ہے. جو ڈی آر ٹی ایس کے تحت وہاں پر کچھ جس طرح فیصلہ آباد میں اس وقت سسٹم چل رہا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم ایک عوام کو اچھی سہولت فراہم کر سکیں. تو سب سے بڑا جو کرونا کے باعث لاسٹ ٹائم جو ویو تھی اس میں سب سے زیادہ جو متاثر کیا وہ ٹرانسپورٹ کے شعبے نے بھی متاثر کیا. کیا آپ کے پاس نئے جو ریویو ایس او پیز جو آپ ریکمینڈ کریں گے وہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ اور ہمارے ڈی آر ٹی ایز بڑے ایکٹیو ہیں. ہم نے ابھی حال ہی میں آپریشنز بھی کیے ہیں، اڈے بھی سیل کیے ہیں. اس حوالے سے ہماری یہ سب سے پہلے اپنی عوام ہماری ترجیح ہے کہ ہم نے اپنی عوام کی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہے. جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے ایس او پیز ہم نے جاری کیے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر ریویو کر رہے ہیں، اور کل تک انشاءاللہ مزید ہم اس کے اوپر جو اپنے ایس او پیز ہیں ڈپارٹمنٹ جاری کر دے گا، تو اس کو انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹ اس وقت سر دست اس طرح کا کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں ایسے ہی حالات کو مد نظر رکھ کے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر ہم اس کے اوپر ڈیسیجنز کریں گے. تو فی الحال آج کی ڈیٹ میں تو ایسا کوئی ہمارا نہیں ہے. ہماری سب سے پہلی یہی کوشش ہوگی کہ ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ہماری عوام بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کریں. ہم کسی چیز کو بھی بند نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارے لیے سب سے اہم اپنی عوام کی صحت ہے، ان کی زندگیاں. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ یا ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات اس طرح کوآپریٹ نہیں کر رہے، تو پھر ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. باری باری کر لیں. حکومت میں نواز شریف کی حکومت کے دور میں اورنج ٹرین بنی ہے، میٹرو ٹرین. پی ٹی آئی نے اس پر شدید تنقید اور کہا کہ ہمیں اس وقت صحت پر، تعلیم پر اور صاف پانی پہ توجہ دینی چاہیے تھی، مگر حکومت اس طرح کے منصوبے بنا رہی ہے کہ جو فائدہ مند یا نقصان دہ ہیں. اب آپ الیکٹریکل
ट्रेन की तरफ जा रहे हैं कि क्या पानी की सहूलत, सेहत की सहूलत आपने दे दी है जो अब आप हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं? देखिए, तरीका आपने भी अपना लिया है? मैं ये आपकी बात से इतफाक नहीं करूंगा। ना ही हमने कभी ये कहा है कि ये हमारा मंसूबा है, और ना ही हमने ऑरी लाइन के हवाले से या जितने भी इनके सिस्टम है, मैंने ये कहा है कि हम इंट्रोड्यूस करने लगे हैं जो हमारी इस वक्त ट्रांसपोर्ट है उसको हम इलेक्ट्रिक के ऊपर हम लेना चाहते हैं, हम लेके जाना चाहते हैं। और उसकी तरफ हम ये पहला कदम हम उठा रहे हैं कि 50 बसें हम लाहौर में लेके आ रहे हैं। और जहाँ तक ये आपका सवाल है कि हम तनकीद करते रहें, तनकीद नहीं करते रहे, हम तो इस्लाह की कोशिश करते रहे हैं कि हमारी ये ख्वाहिश थी कि इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो दीगर शोबों पे खर्च की जाए जिसकी ज़रूरत थी। आज भी आपके सामने है कि हमारी ये जिम्मेदारी थी और हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन को हमने ऑपरेशनल कर दिया है। उसके ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसका हमें मिनिमम किराया भी लाहौर की आवाम की पेइंग कैपेसिटी को सामने रखते हुए हमने 40 रुपीज़ दे दिए हैं। इसमें लेकिन सिर्फ अभी तक देखें कि उसकी जो राइडरशिप है वो सिर्फ 70,000 तक पहुंची है, जो कि हमारी स्टडी थी कि इसको 2.5 लाख होना चाहिए। लेकिन अभी ये बात कहना कबल वक्त होगा कि ये हम उस राइडरशिप को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी इसके ऊपर हमें इंतजार है, हम इसको देखेंगे, अवाम का ट्रेंड को देखेंगे। लेकिन हम हमारा ज़मीर मुतमिन है कि हमने इस मनसूबे को ईमानदारी के साथ और नेक नीति के साथ आगे बढ़ाया है। मिनिस्टर साहब का उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि नून लीग ने जो मंसूबे शुरू किए वो शोबाजी, खुद नुमाई और ज़्यादा से ज़्यादा किकबैक्स के साथ जुड़े हुए थे। और ये भी उसकी एक अहम तरीन मिसाल है कि जहाँ सूबे के अंदर इतने फंड से 35 जदीद तरीन हॉस्पिटल बन सकते थे, उस फंड को एक मंसूबे पे झोंक दिया गया और हेल्थ केयर सिस्टम का स्ट्रक्चर इस हद तक लड़खड़ाता छोड़ के गए कि अपने इलाज के लिए भी उन्हें बाहर जाना पड़ा। और ये खुद उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ थी वो अवाम दोस्त नहीं थी और वो किक बेस पे मबनी थी। जितने बड़े मंसूबे से जितनी बड़ी किकबैक मिलनी थी उतना बड़ा प्रोजेक्ट वो लेके आए। और दूसरी बात ये भी इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि पहली दफ़ा ये हुआ कि किसी साबका हुकूमत का मंसूबा अगली हुकूमत ने मुकम्मल किया और चलाया। ये रीत नहीं रही है पाकिस्तान की तारीख में। यहाँ ये होता रहा कि आपके पैसे, टैक्स पेयर के पैसे जो हैं वो एक हुकूमत एक मंसूबा बनाती रही, दूसरी हुकूमत आके उसको ख़त्म करके नए सिरे से एक नया मंसूबा लेके आती रही। तो हमने उस मंसूबे पे तहफ़्फ़ुज़ात होते हुए भी उसको कंटिन्यू किया, चलाया और ये साबित किया कि ये आपके पैसे हैं, आप कस्टोडियन हैं इस प्रोजेक्ट के। जो उसके अंदर गैप्स हैं हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं, जो उसके अंदर जो है वो अवाम के डायरेक्ट चैलेंजेस जिससे वो गुजर रहे हैं उसकी तस्हीह हो रही है। और जो जो ये मंसूबा आगे चलेगा उसके अंदर जो कमियां, खामियां, कोताहियां हैं, हुकूमत पंजाब उसको एड्रेस करती जाएगी। जी, मैं इसमें एक दफ़ा फिर मरियम बीबी से ये कहूँगी कि ना क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ना 3 में ना 13 में। और कैलबरी क्वीन जो है, जो सर्टिफाइड झूठी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्टिफाइड झूठा एस्टेब्लिश कर चुका है, वो इदारों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने के लिए, अदारों को आपस में लड़ाने के लिए एक और साजिश लेके सामने आई हैं। और जिस अंदाज से उन्होंने पैंतरा बदला है वो इंडिकेट करता है कि उनका ये बयानिया कौमी सलामती के अदारों को मुतनाज़ बनाने का, अफवाज पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमले करने का अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। तो अब वो अपनी फेस सेविंग के लिए किसी न किसी चोर दरवाजे से वो ये अंदिया दे रही हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। भी बातचीत आपने अदालतों से करनी है, बातचीत आपने कानून और आइन के साथ करनी है।
अपने वालिद मोहतरम को लाएं, सजा याफ्ता मियां मफरूर साहब को पाकिस्तान लाएं। कानून उनका मुंतज़िर है, अदालतें उनकी मुंतज़िर हैं। अदालतों के साथ आके बात करें, अपने जो लीगल आपके राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करें। ये छुपा लुकी जो आप खेल रही हैं इससे बाज आएं। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आपके गैर ज़िम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करते हैं। आप सियासत करें, सियासी हुकूमत पे तनकीद करें। सियासी हुकूमत को जिस तरह से भी आप समझती हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो आप समझती हैं कि ठीक नहीं है, और हम समझते हैं कि आपने जो 35 साल इस मुल्क को ज़ख्म दिए, इसकी मईशत को दीमक की तरह चाटा, और राजकुमारी साहिबा आपने और आपके ज़िले सुबहानी ने जिस तरह 35 साल इक़्तिदार के मज़े लूट के इस मुल्क की मईशत को, उसकी कश्ती को मुंशी साहब के साथ मिल के तहस नहस किया और गर्क कर दिया उसका बेड़ा, तो मुंशी साहब भी बाहर हैं, मियां मफरूर साहब भी बाहर हैं। तो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान सिर्फ आप सियासत करके हुक्मरानी के लिए ना आए कि जब आप हुक्मरान हैं तो पाकिस्तान आना है, जब अवाम आपको मुस्तरद कर दें तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के ऐसे बयानिए को जन्म दें जो पाकिस्तान के अवाम की दिल आज़ारी करने का बायस बने, जो पाकिस्तान के अदारों को कमज़ोर करने का बायस बने। तो ये जो हालिया बयान है, ये इर्रेलिवेंट खातून ने रेलिवेंट होने के लिए ये एक पैगाम है ऑलिव ब्रांच कि मैंने जो किया मुझे पछतावा है और तौबा ताइब करती हूँ, तो अब मेरे साथ कोई बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि वो मायूस हैं और उनको पता है कि उनकी कोई ब्लैकमेलिंग, उनकी किसी किस्म की ये शोबदाबाजी ना उससे हुकूमत मरगूब होगी और ना कोई इदारा, क्योंकि कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना और अदारों को आज़ाद करके कानून के तहत चलाना, यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज़म है और इसी कमिटमेंट के साथ हुकूमत आगे बढ़ रही है। जी जी जी, ये आपका सवाल हो गया, इनको पूछना। अब आप मरियम नवाज पर तो कह रही हैं कि वो अदारे को मुतनाज़ा बना रही हैं, क्या आप समझती हैं कि अदारों को भी इस तरह के करप्ट चोरों से कोई डील नहीं करनी चाहिए और नहीं मिलना चाहिए? उनको क्या मशवरा दें? देखिए, डील इंसान जो है वो कानून से तो कर सकता है, अदालतों के साथ उसका जो कानूनी एक हक है। यहाँ 302 के मुल्ज़म बेल होती है, आपके सामने होती है, और आप कन्विक्ट भी होते हैं लोग। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुल्ज़म अगर किसी जगह उन कानूनी अबहाम जो है उसका फ़ायदा उठाता है तो वो उसको क्लियरेंस मिल जाती है। मरियम बीबी का मुकदमा भी ज़ेरे समात है, वो कहीं किसी जगह भी बरी नहीं हुई हैं, वो ज़मानत पे हैं। तो वो जो एक अदालती प्रोसीजर है उसके तहत उनको बेल दी गई है। तो अनकरीब ये नैब को देखना है, जिन अदारों को हमने आज़ाद किया है उन्होंने देखना है कि कानून का इतलाक ताकतवर के ऊपर किस तरह यकसा करना है और सब के लिए यकसा कानून, यही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है और उस पे अमल दरामद के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मैडम, मुस्लिम नून जो है वो आप पर इल्ज़ाम लगाती है कि आपने कमीशन खाया था और आपकी पहली वजारत भी इसी वजह से गई थी। आप क्या समझती हैं कि इसमें क्या हक़ाइक़ है और नून लीग को मशवरा क्या देना चाहिए? मुझे लगता है बेटे ये नून लीग से ज़्यादा आपके दिल का दर्द है, तो मैं बयान कर देती हूँ।
नून लीग का दर्द तो मैं बयान करती रहती हूँ रोज़ और कई दफ़ा कर चुकी हूँ। तो मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम ही दर्द पे मरहम रखना और उस दर्द का इलाज करना है। तो मेरी यहाँ तैनाती ही नून लीग और बहुत सारे ऐसे अफराद के मुंह पे तमाचा है जिनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है और जो इल्ज़ाम तराशियाँ और बयानबाजियों के ज़रिए मुझसे छुटकारा चाहते हैं, तो उनके लिए बुरी खबर है कि उन्हें मुझे भुगतना पड़ेगा। वो जहाँ जहाँ भी बैठे हैं उनकी दिल आज़ारी मैं करती रहूँगी, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो बयानिया है उसको आगे बढ़ाना, अपनी जमात के मंशूर को प्रमोट करना, और अगर किसी को मेरे हवाले से कोई कंसर्न है, अदालतें आज़ाद हैं, जहाँ वो सब रिलीफ ले रहे हैं वहाँ पे भी जाएं। हो सकता है अगर कोई सबूत है तो चले जाएं। और मैं हर तरह के नून लीग के हमले हूँ, मेरे कुछ नादान दोस्तों के हमले हूँ, और जो भी मीडिया के अंदर कुछ ऐसे अफराद के हमले हूँ, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपकी अदालत में भी, अपनी ज़मीर की अदालत में भी और अपने कायद की अदालत में भी सुरखरू हूँ। ये बताइएगा, कल मरियम नवाज और बिलावल के दरमियान वन मुलाकात हुई है, आप उसे किस नज़र से देखती हैं? इसके साथ ही साथ तहरीक इंसाफ का कोई ग्रुप पंजाब में मुतहर्रिक हो रहा है 20 अरकान का, उसके बारे में खबरें आ रही हैं, उसका भी कुछ बताइए। मेरा ख्याल है कि ये सारा सियासी मसाला जो है, इसका जवाब को पेंडिंग करती हूँ। अगला सवाल खिची साहब से कीजिएगा, फिर मैं इसका जवाब देती हूँ, ताकि दोनों चीजें साथ साथ चलें। एक सवाल का जवाब दे दें कि कल मरियम और बिलावल की मुलाकात हुई है, तो मरियम का नया बयान आ गया है। जब भी मरियम कोई बयान देती है उसके बाद बिलावल जो है वो उस बयान से मुकर जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता बंदगली में लेके जा रही है? इसका जवाब भी पेंडिंग करके खिची साहब से सवाल करें पहले। जो है वो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात की, इसके हवाले से जो हमारे में जब तक कानून साजी ना हो तब तक ये मुमकिन नहीं है। क्या आपने इस हवाले से कोई तैयारी की है, कोई हुकूमत पंजाब को इस हवाले से आपने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी? हाँ जी, इसमें हमने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में इसको पहले फ़िलहाल तो हमने ये अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वज़ीर आला साहब को हमने पेश की है, जिसके ऊपर वज़ीर आला साहब ने हमें प्रिंसिपली अप्रूवल दे दी है। अब इसके ऊपर डिपार्टमेंट अपना काम शुरू कर दिया डिपार्टमेंट ने, और ये बात आप भी इसी हमारे ही माशरे का हिस्सा हैं और आप ये समझते हैं कि पॉलिसीज़ के ऊपर जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो उस वक्त तो पॉलिसीज़ कागज़ों में बनती रहती हैं और वो चलती रहती हैं। बीइंग अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2 साल जो मैंने अपने डिपार्टमेंट को देखा है, पिछली जो 10 साल हुकूमत थी इस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब ने उसको सुपरवाइज़ किया है, और उनकी सारी जो दिलचस्पी थी वो डिपार्टमेंट के स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं थी। उन्होंने दीगर अदारे बना के और अपने जो मंसूबे थे वो अब आपके सामने हैं जो चल रहे हैं, जिसके ऊपर ह्यूज सब्सिडी हमारे अवाम के पैसों से जा रही है। तो अब ये हमारा जो सबसे पहला फोकस है कि हमने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना है। हुकूमत का सबसे इम्पोर्टेंट जो एक मकसद जो हिस्सा है वो है उसका अपने डिपार्टमेंट का मजबूत होना। तो ये हम अपने डिपार्टमेंट को मजबूत करने जा रहे हैं, अपने DRTS को मजबूत करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इस तरफ जाने से ना सिर्फ डिपार्टमेंट मजबूत होगा बल्कि डिपार्टमेंट से हम जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी खातिर खा बेहतरी आएगी। मैडम ये बताइएगा कि PDM का बयानिया है, ये हमने फिलहाल 950 और 1000 के करीब की हमने ये रिक्वायरमेंट दी है। जी हाँ, ये नहीं हम भर्ती करेंगे। मैडम ये बताइएगा PDM का बयानिया है कि इदारों की मुदाखलत सिविलियन इदारों में बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर फौज का वो ओपनली कहते हैं कि इदारों में मुदाखलत बंद की जाए, जबकि IG सिंध की जो अगवा का मामला था उसके वज़ीर ने कहा कि ये तो सारा मजाक किया गया है, IG सिंध के अगवा का ड्रामा रचाया गया, जबकि उसी केस पर आर्मी चीफ ने 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया, उन्हें सजाएं दी हैं। क्या आप समझ रही हैं कि वो वज़ीर का जो बयान था कि ये मजाक है, ये ठीक था? देखिए, बात यह है कि जिस पैराए में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी वो पैराया ये था कि सिंध गवर्नमेंट का IG मज़ार कायद की बेहुरमती और फिर उसके साथ जुड़ा वो तमाम एक्शन
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कहने पे ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिलावल भुट्टो को कॉल की थी, और बिलावल भुट्टो साहब क्योंकि जो क्राइसिस पैदा हो रहा था उसको हैंडल करना अशद ज़रूरी था। और उसके बाद आपने देखा कि फ़ौज ने ये साबित कर दिया कि वो एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है और वहाँ एहतसाब का सिस्टम मौजूद है, और जो भी शख्स अपने दायरा इख्तियार से अपने पावर से ओवर स्ट्रेच करेगा उसके लिए फ़ौज का एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, और जिसका उन्होंने उनको ट्रांसफ़र करके अमली मुजाहरा कर दिया। लेकिन देखना यह है कि एक सिविलियन अदारा है जो पुलिस कहलाती है, उसका रोल अब तक कायदे कायदे आज़म के पे जो बेहुरमती हुई उस पर अभी तक क्या एक्शन लिया गया। तो ये मसलतों का शिकार जब हम, और यही जंग है हमारी कि अदारे जो हैं वो शख्सियात के ताबे नहीं होने चाहिए, अदारे कानून के ताबे होने चाहिए, और शख्सियात को अदारों के ताबे नहीं। जिस तरह से उन्होंने डिक्टेट करके अपने ताबे किया पुलिस को, तो पुलिस के ताबे होना चाहिए शख्सियात को। तो यही वो जद्दोजहद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, और इमरान खान साहब उन अदारों की जंग लड़ते हैं। उनका मकसद किसी फ़र्द को मजबूत करना नहीं, उस इदारे को जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी के साथ जुड़ा है उसको मजबूत करना है, ताकि मजबूत शख्सियात कमज़ोर अदारों को यरगमाल ना बना सके। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पहले बात चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक दूसरे के खिलाफ शदीद तदो तेज जुमलों का इस्तेमाल हो रहा था, फिर जलसों में गई, अब सुना है कि स्टूडियोज तक बात पहुंच चुकी है। इतनी पोलराइजेशन सोसाइटी में तीन बड़ी सियासी जमातों के दरमियान किस तरह देखती है पुरानी पार्लियामेंटेरियन है, किस तरह देखती है, क्या इसमें कोई हादसा होने का कोई इम्कान? मैं यहाँ दोनों हाथों से सैल्यूट करना चाहूँगी उस शख्स को जिसने ये फिक्रा और मुहावरा इजाद किया था कि चोर मचाए शोर। तो ये आज के दिन में नून लीग का वावेला, शोरगुल, आओ बकार, रोना धोना ये साबित कर रहा है कि वो जलसों में भी उनका शोर और चीखो पुकार, उनका टीवी टॉक शोज में वो शोर और चीखो पुकार, आओ बका, उस मुहावरे पे मोहर लगाती जा रही है बार बार कि चोर शोर मचा के अपनी चोरी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो नहीं छुपनी और हम उनका पीछा करेंगे। वो टॉक शोज में जाके गलत बयानी करेंगे, हकायक मसाक करेंगे, हम उनको वहाँ रास्ते में उनके दीवारी खड़े करेंगे, और वो जहाँ कानून को हाथ में लेके लोगों को गुमराह करने की, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन वहाँ खड़ा होके उनके सामने चट्टान बनेगा और उनके इस बयानी को शिकस्त देगा। लास्ट बेटे आपने एक सवाल किया था, सॉरी, दोनों का पीडीएम में के हवाले से। हमें इस वक्त जो अभी एक कोरोना के हवाले से मैं मीटिंग लेके आई हूँ, जितनी तेज़ी से ये चैलेंजेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं उनको सामने रखते हुए ख़ुसूसन पंजाब में, और जो फिगर्स आ रही हैं, आज बड़ी हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप सर जोड़ के बैठी है और हमने कुछ अहदाफ तय किए हैं, और वो प्रेजेंटेशंस जो हुई हैं वो हमारे लिए आई ओपनर हैं, हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं कि कोरोना की तबाहकारियों से किस तरह हमने पंजाब को महफूज बनाना है। तो ये जलसों के अंदर आने वाली स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी वो वक्त और हालात के मुताबिक हम देखेंगे, लेकिन बिलावर और मरियम बीबी एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ मुनाफिकाना
चालों के तहत मात देने में मसरूफ़ हैं और हर कोई एक दूसरे से गलत बयानी करके कोशिश कर रहा है कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये अपने साथ एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, एक बयानिए पे इकट्ठे नहीं हैं, तो एक मंजिल पे कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? पहले ये दोनों एक बयानिए पे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि एक दोनों का बयानिया एक नहीं तो इनकी मंजिल एक कैसे हो सकती है? अच्छा मैम, ये बताइएगा कि महंगाई महंगाई एक बड़ा प्रॉब्लम है। कोरोना की पहली वेव में काफ़ी नुकसान हुआ है और अब फिर कोरोना की वेव आ रही है। आप लोगों को मुबस्सिरीन भी कह रहे हैं कि इतना ऑपोजिशन से खतरा नहीं है जितना महंगाई से है, क्योंकि आम पब्लिक में आप लोगों के लिए एक नेगेटिविटी फैल रही है। तो वज़ीर आज़म ने टास्क भी दिया था पंजाब हुकूमत को कि महंगाई को काबू करें, तो अब तक क्या रिपोर्ट बनी है? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ जुड़ा चैलेंज नहीं है, पूरी दुनिया इस क्राइसिस से गुजरी है और गुजर रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी महज़ब इकानमीज़, एस्टैब्लिश्ड इकानमीज़, स्टेबल इकानमीज़ और महज़ब माशरे जो हैं वो भी इसकी लपेट में हैं। हमारी कोशिश है कि अवाम के कंधों से ये बोझ कम से कम किया जाए और इस मुश्किल में उन्हें तनहा ना छोड़ा जाए, और जो मसनूई महंगाई पैदा करके ज़हीरा अंदोज़ी करके जो माफियाज अवाम से ज़रूरियात अशिया छीन रहे हैं या दूर कर रहे हैं, कानून को हरकत में लाया जाए और उनका कानून के शिकंजे में ला के एहतसाब किया जाए। ये एक प्रोसेस है, लेकिन जल्द इंशाल्लाह चीनी और आटे की कीमतें नीचे आ जाएंगी। थैंक यू बेटे, टाइम देखो। वो बेटे आपने पूछ लिया सवाल, वो पीछे। हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये पैंतरे बदलने की माहिर जमात जो है वो हमेशा कोई ना कोई मार्केट में अपने लिए चूरन फेंकती है और बेचने की कोशिश करती है। ये उनके पटारे से कोई नया चूरन की पुड़िया निकली है जो मीडिया में जिंदा रहने के लिए बेच रहे हैं। थैंक यू।